Madam, today on the death anniversary of Shri Baba Saheb Ambedkar, I would like to start by quoting him. I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved. Madam, I thank you for allowing me to speak on the Central Universities Amendment Bill 2023. Madam, this bill has a noble intention, and I am happy that the government have brought this legislation. But why the government is bringing this legislation nearly after 10 years, as it was recommended in Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. The bill intends to establish a central tribal university named after the legendary mother-daughter duo Shamaka Sharaka, the duo who fought fiercely against all odds for their community's well-being. The topic is very close to my heart, madam. On the very first day of this winter session, I asked the government intention on the issue of wide-range vacancies related SC, ST, OBCs in many government institutions. Today, while speaking on this bill, I remember of Rohit Varmula, a Dalit PhD student, and his tragic death. I am reminded of the words, and I quote, "The value of a man was reduced to his immediate identity and the nearest possibility, to a vote, to a number, to a thing," unquote. These are not my words. These were the words of Rohit, his last words. It is extremely sad that as a society we have collectively failed to establish equality, deliver social justice. We cannot afford to lose more Rohit. In fact, I asked this government, why did they choose to bring this legislation now? Why the government announced the Central Tribal University of Telangana during the state election? It's clear to everybody. I guess everybody knows this answer. और पिछले दिनों में इस देश में दलितों पर, आदिवासियों पर जो घटना घटी है, ये देश के सभी कोई जानते हैं. मैंडेट मिलना अलग बात है, लेकिन दलितों का, आदिवासियों का दिल में झांकना, उसका दर्द को समझना, वो कुछ और होता है. आज हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी के डाटा कह रहे हैं. द क्राइम अगेंस्ट ट्राइबल्स हैव बीन इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर. जस्ट in 2 years, from 2020 to 22, it is nearly 22% increase crime against tribals. We are concerned, we are most concerned about this government's ignorance towards the SC, ST, OBCs in educational institutions. 13,626 students belonging to SC, ST, OBCs studying throughout the country in the most prestigious institutions like IIT, IIMs, central universities have a dropout in last 5 years. I think that our minister is taking a note of it. Tragically, 32 students have committed suicide every day between 2019 to 2021. This is not a good fact, but as a parliamentarian, as a human being, as an Indian citizen, it's concerning, it's alarming to me. Shockingly, close to 24% of individuals with secondary level education find themselves among those who tragically take their own lives. Similarly, 80% of the students of middle level education, nearly 60% of high secondary level education are face of alarming reality. The government is bringing new bill, Central University for Tribal, very good. आपने एकलव्या को भी लाया, एकलव्या मॉडल नए-नए स्कूल्स बने, लेकिन till date 38,000 vacancies are still in Ekalavya schools. Even
Out of 740 Ekalavya schools, only 401 are only operational and only 58% of the teachers are there. So, आज हमारे बंगाल में हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री कन्याश्री के थ्रू 78 लाख वुमेन को बेनिफिटेड कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्निशन दिए हैं और ये हमारे लिए गर्व के विषय है, क्योंकि अगर हम नींव सही से नहीं रखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बच्चे कैसे पहुंचेंगे। तो नींव को सही रखना बहुत जरूरी है। और हमारे जो मंत्री है वो बंगाल से आते हैं, डॉक्टर सुभाष जी। वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशनल मिनिस्टर है। तो फिर हम आपसे कहेंगे कि आप बंगाल से आते हैं, आपको बंगाल का दर्द समझ में नहीं आते। आप बंगाल में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो विश्व भारती है, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जहां से देश के पूर्व प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं और काफी लोग जो यहाँ से पढ़े हैं, जो विदेशों में सेटल है, इवन कोई इस पार्लियामेंट में भी है। आज आप सरकार के लिए काम करेंगे, पब्लिकों के लिए काम नहीं करेंगे। आप चुप रहिए। यूनेस्को ने विश्व भारती को हेरिटेज स्टेटस दिए और वहां के जो वाइस चांसलर है वो प्लेकार्ड में जो है कवि गुरु रविंद्रनाथ जी का नाम नहीं लिखा। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ वाइस चांसलर और नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा। आप बताइए, कोई दाढ़ी रखने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनता है। आप रविंद्रनाथ जी को अपमान किए हैं, बंगाल का अपमान है, और सिर्फ बंगाल के नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के अपमान है। मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद ये विश्व भारती में हर साल विश्व भारती में हर साल पौष मेला और सब होता है। झूठ बोल रहे हैं। नहीं बंद कर दिया। मैडम, मैं आपसे आरक्षण मांग रही हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या बात है? ये क्या बात है मैडम? बोलिए। मैडम, वो खड़े झूठ बोल रहे, मुझे क्यों नहीं बोलने देंगे? क्या मैं महिला हूँ? क्या मैं एक ऐसे घर से आई हूँ इसीलिए मुझे नहीं बोला दिया जाएगा? अब तो बैठ के बोलिए। मैडम, इवन विश्व भारती का प्रांगण में, मैडम, विश्व भारती का प्रांगण में जो हर साल पौष मेला होता है, जहाँ पर बाउल संगीत होता है, जहाँ से देश विदेश से हर पर्यटक आते हैं, वहाँ पर विश्व भारती के जो वाइस चांसलर है पौष मेला करने नहीं देते हैं, बसंत उत्सव करने नहीं देते हैं, सब अपने मनमर्जी से करते हैं। इवन स्टूडेंट्स के साथ बहुत खराब तरीका से वो बिहेव करते हैं। आज बताइए, हमारे स्टेट में यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिशन लीडर हमारे स्टेट के आदिवासी मंत्री को कहते हैं कि वो पैर के नीचे, जूते के नीचे रखते हैं। ये है इनके आदिवासी दर्द, ये है इनके आदिवासी प्रेम। तो आप भूल जाइए, आप एक बंगाल से आ रहे हैं, आपको बंगाल के लिए सोचना चाहिए। बंगाल के लिए उन्होंने मेरा तारकेश्वर में केंद्रीय विद्यालय का नींव तक नहीं रखा। गवर्नमेंट ने जमीन दे दिया, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट ने मैडम जमीन दे दिया, फिर भी तारकेश्वर का केंद्रीय विद्यालय उन्होंने नहीं किया। देखिए, खड़े पार्लियामेंट में झूठ बोलने से नहीं होता है, देश के लिए काम करना पड़ता है। जीत तो सबको ही जाता है, लेकिन देश का दिल जीतना पड़ता है। यही बोल के मैं अपना पार्टी का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। धन्यवाद। श्री लाभू श्री कृष्ण जी। Thank you, ma'am. Thank you for allowing